Okay, solve. Look at this. Integration of y dx is equal to integration of sin x plus cos x dx, correct? And that would be, limits are from 0 to pi. So we just forget about the limits for some time and just solve the integration. So integration of sin x dx plus integration of cos x dx, right? This is minus cos x, correct? Plus sin x, and then you put the limits 0 to pi, है ना? Okay, now upper limit is pi, so minus cos pi plus sin pi minus lower limit, so minus cos 0 plus sin 0. Now do you remember the unit circle method? This is 0 degrees, 90, 180, 270, 360 and so on. What is this coordinate? 1, 0. This is 0, 1. This is minus 1, 0. 0, minus 1. First value is always cos theta and y value is always sin theta, है ना? Sin 0 तो ये वाला साइन होगा, राइट? sin 0 0, cos 0 1, है ना? ठीक है. sin 90 cos 90. रिमेंबर, पहला वाला वैल्यू हमेशा cos होगा, सेकंड वाला हमेशा sin होगा, ठीक है? ओके, आई एम लुकिंग फॉर पाई वाला वैल्यू. देखो, दिस इज cos पाई, दिस इज sin पाई, करेक्ट? याद आ रहा है क्या कुछ? ठीक है, और ये उसके पहले होता था, यूनिट सर्कल मेथड. ठीक है, लेट्स पुट द वैल्यूज एंड लेट्स सी व्हाट डू यू गेट. माइनस cos पाई माइनस 1, तो माइनस 1 प्लस 1 प्लस sin पाई 0, sin पाई 0, राइट? ओके, माइनस cos 0 1, ठीक है, तो यहाँ पे माइनस 1 आएगा, sin 0 0, ठीक है. तो I'm getting answer as 1 plus 1 2. Anyone got the answer? Good. I hope you are able to understand the solution. It's just direct application of formula, nothing else. I'll give one more. Try this. Y is equal to 3x square plus 2x plus 4. Okay, and find integration of y dx from 2 to minus 1. Try this.
Someone is absent. Yes, what is the answer? 24. 26. 24. क्या है? -24. चलो, we have two answers, 24 -24. So if -1 is above, would that change the order? Think about it. स्ट्रेस में हो गया तुम. हाँ, यहाँ देखो. See, you should understand one more thing actually. The moment you put the values, let's say 3x square plus 2x plus 4, y का value I'm substituting, okay, and then I write I just split the integration because there is addition here, okay. So this is 3x square dx plus 2x dx plus integration of 4 dx, correct? Okay, now what I'm going to do here is I can take the constant outside, because if you have constant with variable, you have to take constant outside and integrate the variable, right? So what I'll do is I'll write 3 integration of x square dx plus 2 can be taken out, integration of x dx plus 4 can be taken out, integration of dx. I hope you understand this is, we just write integration of dx, but it is integration of 1 dx. Okay, chalo. Abhi now you use the formula, right? Okay, what is the formula for x raised to n? X raised to n plus 1 by n divided plus 1. n plus 1 upon n plus 1. ठीक है, fine. तो what you should understand, see the moment you apply the formula, फॉर्मूला लगाने के बाद, ठीक है, ये जो सिंबल्स है वो निकल जाएंगे. ये तो सिंबॉलिक है, आई टोल्ड यू ना, दिस आर सिंबॉलिक. इसका मतलब इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. मतलब क्या है कि यहाँ पे जो भी बैठा रहेगा उसको एक्स के टर्म पे होना पड़ेगा, तो ही हम कर सकते हैं इंटीग्रेशन. तो दीज टू आर सिंबॉलिक. इज मेकिंग सेंस, ठीक है. हाउ डू यू रीड इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है ना. यहाँ पे टी स्क्वायर लिख दूंगा तो इंटीग्रेशन नहीं हो पाएगा. इज मेकिंग सेंस व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ठीक है. तो द मोमेंट यू अप्लाई द फॉर्मूला, द सिंबल हैज टू गो. जैसे ही फॉर्मूला लगाया, ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू अप्लाई द फॉर्मूला, ठीक है. फॉर्मूला सेज इट इज x रेज़ टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो 2 प्लस 1 विल बी 3 अपॉन 3. तो फॉर्मूला लगाया तो ये सिंबल निकल जाना चाहिए, समझा. डोंट कीप द सिंबल आफ्टर यू अप्लाई द फॉर्मूला. समझ में आया? फॉर्मूला लगा दिया ना हमने, ठीक है, मतलब इंटीग्रेशन कर लिया, ठीक है. तो इंटीग्रेशन कर लिया तो जो सिंबल्स है वो निकल जाने चाहिए, समझे. प्लस 2 यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 4, इस कंडीशन इज एक्स. समझ में आ रहा है क्या? ठीक है. एंड नाउ यू शुड नॉट फॉरगेट अबाउट द लिमिट्स. लिमिट्स में लिखा ही नहीं, ठीक है, बट यू शुड राइट इट. आइडियली लिखना चाहिए, ओके. बट अप्लाई कब करना है? आफ्टर यू हैव डन द इंटीग्रेशन. तो दिस इज गोइंग फ्रॉम 2 to -1. Who is the upper limit here? Who is the lower limit? 2. That you should understand. ये कट कर देते पहले, ठीक है. तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो मुझे जहां जहां पर x है वहां पे क्या सब्स्टिट्यूट करना है? -1. समझ में आया क्या? इट इज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ना कि लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट, है ना. तो पहला सब्स्टिट्यूशन हैपन फॉर -1, इजंट इट? ठीक है. लेट्स पुट द वैल्यू. व्हाट डू यू गेट? -1 का क्यूब, ओके, प्लस -1 स्क्वायर plus 4 into -1. This is the substitution for upper limit, minus, now I put the lower limit. That is 2 cube, है ना, plus 2 squared plus 2 into 4. Is making sense?
समझ में आएगा? लोअर लिमिट ये है, अपर लिमिट वो है, तो अपर लिमिट में पॉजिटिव नेगेटिव वाले यू हैव टू सी कि जो अपर लिमिट है पहले वो जाएगा माइनस द लोअर लिमिट है फिर वो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? इज मेकिंग सेंस? समझ में आया? ठीक है, किसने किसने ये मिस्टेक किया लिमिट्स का, हाथ में करो। ठीक है, समझ में आया ना? मतलब यू हैव टू अंडरस्टैंड कि नंबर्स तो वहाँ पे द ऑर्डर हैज टू बी फॉलोड। ओके, नाउ यू टेल मी द वैल्यूज। क्या आएगा यहाँ पे? -1, ओके, +1 एंड -4, करेक्ट है ना? माइनस दिस विल बी हाउ मच? 8 + 4 + 8, ठीक है, this will get cancelled, -4 minus what do you get here? 16 + 4 20, answer is -24। किसको इसको आया हाथों पकड़ो, 1 2 3 4 5, गुड, ठीक है, गुड इनफ। कॉपी दिस, वन मोर, थोड़े और हाथ ऊपर चाहिए मुझे। ऑलमोस्ट डन, वी आर, एक मेथड और तुमको बताना है, then I think we will be done with this integration part also. We'll start vectors today, है ना, if time permits, and then we come to core physics। अब तो मैथ चल रहा है। ठीक है, चलो एक और ट्राई कर लो। y is equal to x plus 1 by x plus 1 by x square, and limit, find integration of y dx from let's say 2 to -2। आउट है कुछ समझ में आया पिछला सब? Look at this. So we have integration of x plus 1 by x plus 1 upon x squared. This is dx, limits are there, I'm going to put it later. Okay, that is integration of x dx plus integration of 1 upon x dx plus integration of 1 upon x square dx। ठीक है, this is actually x square by 2, I hope you understand this, है ना? And this we cannot use the formula, okay, तो we'll do ln x इसको, है ना, वो x to n वाला फॉर्मूला नहीं चलेगा यहाँ पर। ओके, और यहाँ पर what will happen, this is plus can we take this x square ऊपर, that will be क्या बोलते हैं x to -2, that is x to, if you look at this integration of 1 upon x square dx, that will be integration of x to -2 dx, that is x to -2 plus 1 upon -2 plus 1। We have done this integration actually, which is -1 by x, है ना, किया था हमने लास्ट टाइम। ओके, तो you'll get यहाँ पे -1 by x, ओके, and then we have to put the limits also। लिमिट्स क्या है अपना, लिमिट्स है लोअर लिमिट इज 2, अपर लिमिट इज -2। ओके, लेट्स पुट द लिमिट्स, व्हाट डू यू गेट? अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट किया था -2 स्क्वायर्ड अपॉन 2 प्लस ln ऑफ -2 -1 by -2, दिस इज माय अपर लिमिट सब्स्टिट्यूशन। ओके, माइनस लोअर लिमिट, दिस वुड बी 2 square by 2 plus ln 2, okay, -1 by 2। Let's open the bracket and see what do we get।
ओके तो वी हैव यहाँ पे विल गेट 2 है ना, प्लस ln ऑफ -2 ओके प्लस 1/2 माइनस 2 ओके माइनस ln2 ओके प्लस 1/2. आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट. ठीक है, यहाँ पे दिस 2 एंड दिस 2 विल गेट कैंसल्ड. ओके हाफ प्लस हाफ इज 1 ऑफ कोर्स. ठीक है, that would be 1 okay, and then this is ln minus ln. Log a minus log b is log of a by b, so plus log of a by b. Okay, so 1 plus ln minus 1. आया ये क्या ही है, समझ में आया क्या? व्हाट इज द मिस्टेक? किसी को इसको आया आंसर? तुमको आया सिर्फ? क्या मिस्टेक है भाई? क्यों भाई, log a प्लस log b है क्या? माइनस था ना वहां पर. कॉपी. वन मोर आई वांट. मुझे नंबर्स नहीं मिल रहे यार, जब तक तुम लोग आंसर नहीं लाओगे तब तक चेक करते रहेंगे सब. क्या है आंसर? क्यों? हाँ? मैं पीछे फॉर्मूला लिखा तो है लॉग का, लिखा है ना, तो फिर So let's move to one more. I need at least 6-7 people तो चाहिए मुझे, हाफ 50% लोग को आंसर आना चाहिए. y is equal to 1 upon x cube plus root x, and I want integration of y dx from 4 to 9. Solve it. Okay, let me solve. Look at this. Integration of 1 upon x cube plus root x dx. It will be integration of 1 upon x cube dx plus integration of root x dx. This will be how much? This will be -2 upon square, है ना? ठीक है, चलेगा ये? समझ में आ रहा है ये वाला कैसे क्या मैंने? दिस इज x रेज टू n+1 अपॉन n+1, तो ये मिलेगा. ये नीचे आना चाहिए क्या? सॉरी, इट विल बी 1 अपॉन 2x². सही है अभी? सही है ना? ओके, प्लस व्हाट इज दिस? 1 अपॉन 2 रूट x है क्या? If you remember, I think we did this also. This will be x raised to half plus 1/8. अरे भाई साहब ये तो अलग आ रहा है. This will be क्या आएगा? x root x upon 2/3 है ना? Because you look at this is x raised to 3/2 upon 3/2, तो ये 2/3 हो जाएगा, और this is x root x. If you remember, we have done this. चलेगा? ये है अपना आंसर. अभी तो डालेंगे वैल्यूज, अब देखते क्या होता है इसका. Let's put the values. You have 4 here and 9 here, so it will be -1 upon 2 into upper limit, है ना, plus 2 into 9 into root 9
upon 3. This is upper limit substitution minus lower limit is minus 1 upon 2 into 4 squared plus 2 into 4 into root 4 upon 3. तो ये मिलेगा माइनस ना 81 बाई इंटू 2 राइट 162 ठीक है दिस इज 3 3 ठीक है 3 दिस इज 9 प्लस दिस इज 18 है ना माइनस दिस विल बी minus 1 by 32 plus this will be how much 16 by 3 ठीक है ओके तो है घटिया नंबर कुछ नहीं कर सकते दिस विल बी minus 1 by 62 plus 18 plus 1 by 32 plus 16 by 3 minus 1 by 62 plus how much will be this? This will be 3 में नहीं जाएगा ना ये ठीक है तो we have 18 into 32 into 3 plus 3 plus 16 into 32 upon 3 into 32 है ना कितना आएगा बस अब तो कर सकते हो ना ऐसा कुछ आया तुम लोग को बाय माइनस ओह यस उप्स भाई साहब दिस इज हाउ मच 6 9 करेक्ट एंड करते बैठो यार इसमें तो अभी मैं नहीं कर रहा इसको सॉल्व जो भी आएगा इससे है ना अरे यहाँ तक तो पहुँच सकते हैं है कि नहीं इसका तो कैलकुलेशन है आया क्या क्यों और तुमको करना तुम्हारा एग्जाम है कर सकते हो ये तो कैलकुलेशन कर सकते हो इतना बड़ी बात नहीं है 56 into something of the sort. Let's do one more. थोड़ा इजी कर दे तुम्हारे लिए it's okay it's fine leave it कर लो what is the answer you're getting minus 33.16. 33.16 what Minus. let's see integration of x plus x squared
प्लस रूट एक्स डी एक्स, है ना, that will be what, integration of x dx plus integration of x square dx plus integration of root x dx. That will be how much? This is x square by 2, this is x cube by 3, this is how much? 2x root x by 2. क्या है इसका? x root x और नीचे आएगा 3/2 ना, ऐसा है क्या? बराबर है ना, ठीक है. एंड देन लिमिट्स लगाओ, व्हाट डू यू गेट? 4 1, ठीक है. अपर लिमिट इज 1 हियर, तो 1/2 प्लस 1/3 प्लस 2/3, ठीक है. इफ यू पुट सब्स्टिट्यूट 1 माइनस दिस इज 4 स्क्वायर 16/2 8, करेक्ट है ना, प्लस दिस विल बी 4 क्यूब 64/3, ठीक है. एंड देन दिस विल बी प्लस this is 4 8 into 16 16/3, चलेगा. एंड दिस विल बी हाउ मच? 3/3 1 हो जाएगा ना यहाँ पर, ठीक है ना, बिकॉज 2 + 1 इज 3 एंड यहाँ पे भी 3 है ना नीचे, तो 3/1 1 + 1/2 3/2 बराबर, ठीक है. माइनस यहाँ पे देखते हैं क्या मिलेगा. 64 + 16 कितना है? 80. तो यहाँ पे भी है 8 plus 80/3 and that will be 3/2 minus what do you get? 24 है ना, 104/3, ठीक है. क्या है आंसर फिर? यहाँ पे हैव 9 minus 208/3 minus 199 upon. अच्छा हाँ, सॉरी माय बैड. ठीक है ना, आया क्या? किसके बोला हाथ में? 5, बस 5 रुपये मिलेगा. हाथ में करो सबको. 8 हो गया क्या? हाँ हो गया, चलो बस काफ़ी है, ठीक है. लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक. इसमें वन मोर थिंग दैट यू शुड नो, वन मोर कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन. इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन ऑफ लीनियर फंक्शन. So this you will learn as part of your maths course, ठीक है. मैथ्स में तुम उसको और डिटेल में पढ़ोगे अच्छे से, ठीक है. आई एम गोइंग टू टीच यू जितना फिजिक्स का काम का उतना ही, ठीक है. ओके, अब देखो क्या हो रहा है कि अगर x इज रिप्लेस्ड बाय ax प्लस b, अगर ऐसा कहीं हो रहा है कि x को हमने ax प्लस b से रिप्लेस कर दिया है, ओके, देन वॉट एवर इफ दिस हैपेंस, ओके, देन व्हाट यू शुड डू, यू शुड सॉल्व इट नॉर्मली, जैसे तुम सॉल्व करते हो वैसे सॉल्व करो, बट जो भी आंसर आता है तुम्हारा उसको a से डिवाइड कर दो बस, ठीक है. जैसे एग्जांपल, ठीक है, लेट्स से इफ दे गिव मी क्वेश्चन लाइक दिस कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ 2x + 3 dx, तो व्हाट विल बी माय आंसर? समझ, यहाँ पे x, नॉर्मली वी हैव लर्न इंटीग्रेशन ऑफ साइन x, है ना, हमको फॉर्मूला साइन x का आता है, राइट, पर x की जगह पे यहाँ पे लीनियर फंक्शन है, ठीक है. तो यू सॉल्व नॉर्मली, व्हाट इज आंसर? cos x माइनस cos x, राइट, माइनस cos, जो नॉर्मल फॉर्मूला है वही लगाओ, डिवाइड बाय a करना है, a is 2 हियर, राइट. समझ में आएगा? एग्जांपल और बताओ, ये एग्जांपल नंबर 111 है. वन मोर एग्जांपल, सिंपल ऐसे दिया, इंटीग्रेशन ऑफ cos ऑफ 3x, बस इतना सा दिया है. व्हाट इज आंसर? cos का इंटीग्रेशन इज साइन ओनली, ठीक है, एंड दिस इज नॉट x, दिस इज ax ना, ठीक है, ax है ना यहाँ पर, मतलब b नहीं है, मतलब ax तो है, ठीक है, तो डिवाइड बाय a. समझा? इफ योर x इज रिप्लेस्ड बाय सम लीनियर फंक्शन, यू शुड ऑलवेज डिवाइड बाय द कोएफिशिएंट. समझ में आया क्या? एक से हमसे डिवाइड करना है, बस सिंपल सा फंडा है. एक एग्जांपल और लेते हैं, थर्ड एग्जांपल, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ 2x + 4 raised to 10 dx, ऐसा दिया है. नाउ अगर यहाँ पे x raised to 10 होता तो डू आई नो द आंसर, ठीक है, डू आई नो द आंसर ऑफ x raised to 10 dx, यस आई नो द आंसर, ठीक है, बट x इज रिप्लेस्ड बाय सम लीनियर फंक्शन, कैन आई सॉल्व इट? आंसर इज यस, ठीक है, लीनियर से रिप्लेस किया है तो उसका आंसर वुड बी x raised to n + 1 upon n + 1, दैट वुड बी माय नॉर्मल सॉल्विंग. नॉर्मली तो मैं ऐसे सॉल्व करूंगा, ठीक है. अगर x को ax + b से रिप्लेस कर दिया है तो x का इंटीग्रेशन क्या है? x raised to 10,
x raised to 11/11, समझा? तो नॉर्मली ऐसे सॉल्व करेंगे, बट खाली बिकॉज देयर इज लीनियर फंक्शन ऑलवेज डिवाइड बाय a, आंसर, समझा? इफ x इज रिप्लेस्ड बाय सम लीनियर फंक्शन, ठीक है, देन यू सॉल्व नॉर्मली, ओके, नॉर्मल फॉर्मूला लगाओ, बस डिवाइड बाय a करना है बस। इज मेकिंग सेंस व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? फॉर एग्जांपल एक और देखो, किसने मुझे ऐसा समझ दिया कि फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ 2x, okay, where x is going from let's say 30 degrees to 60 डिग्री या 45 डिग्री, चलो ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको? और इसका आंसर यहाँ पे विल से इंटीग्रेशन ऑफ साइन x इज माइनस cos x अपॉन 2 बिकॉज x इज रिप्लेस्ड बाय 2x। समझ में आ रहा है क्या? अगर sin x होता तो आंसर था वाज माइनस cos x, ठीक है, पर sin x है क्या यहाँ पर? नहीं ना, यहाँ पे x इज रिप्लेस्ड बाय सम लीनियर फंक्शन ऑफ x, ठीक है, तो यू शुड डिवाइड बाय द कोएफिशिएंट, a से डिवाइड करना है बस। समझ में आएगा? नाउ यू पुट द लिमिट्स लगाओ, ठीक है, क्या ये 0 है, सॉरी ये 30 है डिग्रीज एंड 45 डिग्रीज, ठीक है। आई विल से यू कैन व्हाट यू कैन डू इज यू कैन बी सो स्मार्ट, यू कैन टेक -1/2 बाहर, कि कांस्टेंट है ना ये तो, ठीक है, लिमिट्स सिर्फ यही तो लगाना है अपने को। लेट्स पुट द लिमिट्स, cos of 2x अपर लिमिट इज 45, तो cos 90 माइनस cos 60, ठीक है, विच विल बी -1/2 cos 90 क्या है 0 माइनस cos 60 इज हाफ, ठीक है। तो व्हाट डू यू गेट? यू विल गेट, इज इट मेकिंग सेंस टू यू गाइस? थोड़ा समझ में आया क्या किया मैंने, ठीक है। व्हाट आई एम टेलिंग यू कि इफ यू हैव अ लीनियर फंक्शन इंस्टेड ऑफ x, यू कैन सॉल्व इट नॉर्मली, जैसे तुमने अब तक सॉल्व किया था वैसे ही सॉल्व करो, सिर्फ आंसर को डिवाइड बाय a करना है बस, ठीक है। वैसे ऐसे लीनियर फंक्शन जरूरी नहीं पूरा ax प्लस b लिखे, कभी सिर्फ ax भी लिख सकता है, ठीक है, तो सिर्फ ax लिखा है तो ऐसे करेंगे। समझ में आया कैसे करना है? इट मेकिंग सेंस टू यू? अब तक जो किया है वही करना है, सिर्फ डिवाइड बाय a करना है बस, कुछ नया चेंज नहीं है। एंड दिस मेथड कैन बी अप्लाइड ओनली फॉर दिस स्पेसिफिक केस। खाली x को अगर ax प्लस b से रिप्लेस करेंगे तो ये कर सकते हैं। अभी ax स्क्वायर प्लस bx, अभी ये पूछा जैसे इफ आई आस्क यू इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ x स्क्वायर dx, तो भाई साहब नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि x इज रिप्लेस्ड बाय x स्क्वायर, इज इट लीनियर फंक्शन? नो इट इज नॉट, ठीक है, तो यू कैन नॉट यूज द फॉर्मूला, यहाँ पर फॉर्मूला नहीं चलेगा, समझा? अब इसको कैसे सॉल्व करना, दैट इज पार्ट ऑफ मैथ, ठीक है। वी यूज इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, x को t डाल देंगे और फिर सॉल्व करेंगे, ठीक है, बट दैट विल सी लेटर व्हेनेवर इट कम्स टू फिजिक्स आल्सो, बट वो सब बात की बात है। बट अभी के लिए समझ में आया क्या? सबको समझ में आया? एग्जांपल समझ में आया? ठीक है, मैंने देखो 3-4 एग्जांपल लिए, देखो एक मोस्टली साइन वाले एग्जांपल से करना होता है, देखो एक ये लिया, ठीक है, एक कॉस का जो बता दिया तुमको, ठीक है, फिर एक मैं ये वाला भी ले लिया और एक विथ लिमिट्स, ठीक है। इतना अगर हम लोग को आता है तो इट्स इनफ, ठीक है। कॉपी दिस, देन आई विल गिव यू वन मोर सम टू कॉपी, प्रैक्टिस, ओके, कॉपी कर लो। I want you guys to try this sum. You have to find me integration of y dx from 0 to pi by 4. I hope you understand pi by 4 is 45 degrees, okay? ठीक है? Where y is given as cos square x. You have to use trigonometric formula to solve this. I'm giving you a hint. You can go back to your formula list and find which formula is relevant for this. ठीक है? But you have to find integration of y dx where x is going from 0 to pi by 4, y का वैल्यू दिया है cos square x। ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यूज करना है अपने को। Have you seen this formula? ऐसा कुछ देखा है क्या? है ना? मिला क्या? मिला cos square, अरे cos 2 theta will be equal to 1 minus 2 cos square theta, ऐसा कुछ लिखा होगा, देखो। You must have written like this. You must have written cos 2 theta is equal to 1 minus 2 cos square theta, something of this sort. Can you find that formula? डबल एंगल फॉर्मूला है ना, डबल एंगल फॉर्मूला कराया है ना, कराया कि नहीं कराया है? तो यहाँ देख, if you have seen this formula then your job is done, because you will understand. Therefore I can write cos square x can be written as 1 plus cos 2x by 2. तो I think he can figure out. तुमने बताया आंसर बराबर, ठीक है, गुड जॉब। तो you understood that कि ये फॉर्मूला लगाना है आपने को, राइट? नाउ यू सब्स्टिट्यूट, स्प्लिट द इंटीग्रेशन एंड सॉल्व, ठीक है। आई कैन सॉल्व दिस वैल्यू वेरी इफेक्टिवली because I know x is replaced by
2x, वो तो कर सकते हो, तो अभी पढ़ा है ना, तो यहाँ भी ऐसे कुछ किया है ना, जब भी x को 2x से रिप्लेस करते कैसे करना है हमको आता है, ठीक है, और वो हाफ को सॉल्व करना है तुमको आता ही है, ठीक है, सब्स्टिट्यूट करो, सॉल्व करो, बताओ मुझे क्या आंसर आ रहा है। समझ में आया कैसा फॉर्मूला यूज किया, अंडरस्टैंड, यू टू अंडरस्टैंड व्हाई वी लर्न दैट फॉर्मूला, ठीक है, कि देयर कैन बी सिचुएशंस वेयर वी हैव सम्स लाइक दिस, तो cos स्क्वायर को कैन वी कन्वर्ट टू लीनियर फंक्शन, द आंसर इज यस, वी हैव दैट फॉर्मूला। Solve it and give me the answer, guys. Yes. What are you getting, guys? So we have the formula. Shh, look at this. Integration of cos square x, नहीं, cos square x dx ही है, ठीक है, 0 to pi by 4. I told you कि we can substitute यहाँ पे 1 plus cos of 2x upon 2 integration dx, and 0 to pi by 4. You can take 1 by 2. 1 by 2 को बाहर निकाल सकते हो, निकालना है तो you will have integration में 1 dx which is dx plus integration of cos 2x dx. Okay, and half is outside the integration. यहाँ पे you have integration of dx is x and cos 2x का integration क्या आएगा, sin 2x upon 2. You have to put limits from 0 to pi by 4. चलेगा? Okay, and then you put the limits यहाँ पे 1 by 2. Upper limit is pi by 4 plus sine of pi by 2 the whole divided by 2, है ना, ठीक है, माइनस लोअर में 0 प्लस साइन 0 अपॉन 2, ठीक है, तो दिस इज 0, साइन 0 इज 0, ये पूरा हट जाएगा, ठीक है, साइन 90 इज 1, ओके, तो विल गेट 1 by 2 इधर, तो क्या मिलेगा, देखो फाइनल आंसर इज समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट, फाइनल आंसर वुड बी क्या आएगा, यहाँ पे 1 by 2 है बाहर, ठीक है, यहाँ पे pi by 4 है, and then 1 by 2, or you can make it like this, pi by 8 plus 1 by 4, whatever. ये आया सबको, कुछ और आया, 1 plus cos 2x को अपन वो वाला फॉर्मूला में लिख सकते हैं ना, ax plus b करके। I don't get it. अभी करवाया ना लीनियर वाला इंटीग्रेशन, उसमें ax plus So there are two different terms, ना, see when you convert cos square x dx as 1 plus cos 2x upon 2, तो इसको इंटीग्रेट करना है अपने को, दोनों को साथ में कर सकते हैं ना, कैसे कर सकते हैं, ax plus b वाला plus b वाला, ax plus b कैसे ही, और वो ऐसे भी लिखो वैसे लिखो सेम चीज होती है, कैसे? cos 2x plus 1 upon 2 करके भी। अरे हाँ बट अच्छा, तो एक मिनट रुको, तुम क्या बोल रहे हो, 1 plus cos 2x upon 2 dx को तुम क्या लिख रहे हो, cos 2x plus 1 upon, अरे भाई साहब ये इसके अंदर ये ऐसा है क्या, is it like this, it is cos 2x plus 1, तुमको चमका की बाउंसर क्या है, फर्क है बॉस, पुट x का वैल्यू है 10 या 40 या 90 व्हाटएवर यू वांट पुट, ये cos, अगर x 45 डिग्रीज है तो ये cos 90 प्लस 1 है, ऐसा तो कि cos 91 थोड़ा होगा, x का बाय योर लॉजिक इफ यू 45 इट इज cos 91 अपॉन 2, ये गलत है बॉस, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, cos of 2x plus 1 is different, समझ में आया क्या, is making sense, just because I'm writing like this, इसका ऐसे लिखा इसका मतलब ये है क्या, ये 1 इसके अंदर आ गया, ऐसे नहीं है वो, इसलिए बोला cos of 2x है वो, is it making sense to you guys, what they thought कि भाई ऐसे लिखे तो ऐसे लिख दो, ऐसे नहीं होता है, गलत हो गया, समझ में, तुम ये एंगल है, ये नंबर है, is cos 90 plus 1 cos 90 plus 2 ऐसे, I hope you are getting my point, just because you are writing it इसका मतलब वो नहीं कि उसके अंदर आ जाएगा वो, समझा, cos फंक्शन होता है cos के अंदर है ये, समझ में आया, पक्का समझ में आ रहा है क्या, ठीक है, समझ में आया क्या,
ठीक है, दिस इज व्हाट यू कैन ट्राई एट होम. एक ऐसे होमवर्क ले लो. ओके, सी इफ यू रिमेंबर when we did graphs, so this was sine का graph and this was cos का graph if you remember, and one cycle used to be 0 to 2 pi. यहाँ भी 0 से लेके 2 pi तक एक साइकिल. Remember cos x, this is sin x का ग्राफ, this is cos x का ग्राफ याद है क्या तो किसी को थोड़ा बहुत याद है क्या? ठीक है, ओके है ना. 0, 90, 180, 270 and 360. That's how the cycle works. Okay, what I want from you guys is I want integration of sin x dx for the whole cycle. This is my question number 1. Same I want you to get for cos x dx. मतलब एक साइकिल में क्या आ रहा है वैल्यू, मतलब ठीक है. You have to integrate sin x for the whole cycle. You have to integrate cos x for the whole cycle. ठीक है. Also I want you to solve. ये तो कर लिया आपने, इंटीग्रेशन cos square x कर लिया हमने, बट हमने इसको 0 से 45 किया था अभी. ठीक है, आई वांट यू टू डू इट फॉर द होल साइकिल, पूरे साइकिल के लिए. साइन स्क्वायर एक्स एंड कॉस स्क्वायर एक्स का आंसर चाहिए मुझे पूरा साइकिल के लिए. एक साइकिल मतलब 2 पाई का साइकिल होता है, समझ में आया क्या? ठीक है, आई वांट cos x sin x cos square x sin square x का इंटीग्रेशन फॉर वन साइकिल इज फॉर 360 डिग्रीज और 2 पाई. दिस इज योर होमवर्क. Write your homework, try it along with the homework that I gave booklet ka. You will also try this. Did you get the question? किसी को डाउट है क्वेश्चन में? समझ आया ना? एक साइकिल में इंटीग्रेट करना है. And you can get the answer by common sense also. First 1 and 2 का आंसर कॉमन सेंस से भी आ जाएगा. ठीक है. सेकेंड वन के लिए you have to solve. You know how to solve it because we have discussed अभी एक. Wait for 2 minutes. You can solve now. देखो तुम्हें क्या आंसर है. हो गया? I think it's enough है ना? चलिए काफी.